very, very precious schedules that you have. Your presence amongst us today is all the encouragement, all the love that we need. और जितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर हमारे दोस्त हैं, आपके लिए बस 4 पंक्तियाँ अर्ज करना चाहूँगा, अगर इजाज़त हो तो। हाँ जी। तो दिल ना मिलते तो मुलाकातें अधूरी होती, बातें तो होती मगर फिर भी अधूरी होती। तो शुक्रिया आपका कि आपके आने से यहाँ पर रौनक बढ़ी, वरना आज की ये महफिल भी अधूरी होती। जी हाँ दोस्तों, आप आ गए, बाहर आ गई। We'd like to thank every single one of you for coming here this evening, making this beautiful evening all the more glorious. And with that, we're about to get started with this most awaited event. I'd like to introduce myself. My name is Rohan Sequeira, your host, your friend, your dost, and we will celebrate a whole lot of beauty, of fashion this evening together. Now, before I get started, of course, I'd like to take a few names, our partners, our sponsors, and I would request our respected audience to kindly join me and give them a round of applause for each name that I read, because these people are very important. They are the ones who made sure that this fantastic evening could happen with each and every one of us together. So ladies and gentlemen, as I read out our partners, our sponsors, please give them a round of applause. We'd like to very especially thank for this evening here at Vardhaman Fantasy presents the Face of the Year Designer of the Year, Absolute India, GTPL 24 News, Char Dil Ka Time TV, Maha News Live, Olivia Beauty Range, AIFT, SS Scene by Seema, Zainab The Fashion Studio, NRI News 24/7, MM Multiplex, Sam TV, Sakal Media Group, Nimesh Photography, LSF World, RK Group, Polarize, RK's Aroma, Desi Headquarters, Shah's Media Entertainment, Gurpreet Sah's Grooming School, Bright Outdoor Media, Ivana, Simca Advertising, and Page 3. And ladies and gentlemen, as you all know, our main sponsors here, Sapna Electronics, MB Meet Baga, AK Academy, Prohra, the Pro Fashion Expression, and Elmas. And of course, ladies and gentlemen, let's talk about our title sponsor, Vardhaman Fantasy. Well, just a little trivia for you people. Yes, give them a round of applause, please. They are the ones responsible for the world's most affordable, reasonable, yet exciting theme park here in Mumbai at Mira Road, and I'm sure every single one of you would love to get there and enjoy yourselves. And we'd like to very specially thank Vardhaman Fantasy once again for bringing together a whole lot of you people celebrating beauty, celebrating fashion here at Face of the Year 2016 and Designer of the Year 2016. With that, ladies and gentlemen, are we ready to get started with this very exciting event? Yes. यहाँ पर मैं खुद को ही सुन रहा हूँ. I don't hear anybody else. Are we ready? Yes. Well, with that, thank you so very much for joining me in excitement, raising the energy. We're about to get started with round 1 of Face of the Year, Designer of the Year. Well, I've been told that we have some very gorgeous young ladies here in our midst. Before we start the show, why don't we have a round of applause for everyone backstage who's so excited to come up here on stage and celebrate beauty and fashion with us. So, well, thank you very much. We're now ready to start off with our first round. The curtain raiser. The curtain's already been raised, but the stage is now set to look so gorgeous with all these lovely ladies. We would like to present our first round, the round of cocktail dresses, where all our gorgeous young girls will walk up on stage.
जो दिल को छू ले वो खबर अभी बाकी है. Namaste, good evening, and a very warm welcome to everyone here. I am Drishti Tatrani from Pune. The defining moment for me was when I won the Miss Kutch pageant in 2011, and now I'm here again. My passion in life is to have orphanage homes one day, and with this crown, after getting honored by this crown, it will be a good opportunity for me to advocate my cause. Thank you. Good evening, one and all. I am Urvi Shetty, 20-year-old fashion designer by profession and model by passion. I'm a strong, confident woman who is very oriented towards her goal. And my ultimate aim in life is to be the only designer who is capable enough of show-stopping her own collection. And pageants like these and Miss India and Miss Diva are one of my dreams. So I would like to thank Chatur Singh sir and Vardhaman Fantasy for giving me this platform. Thank you so much. Enjoy the show. Round of applause. Yes, absolutely. Good evening, everyone. My name is Isha Vaidya. I'm 20 years old and I'm doing my third year in investment management. I love swimming and I love dancing. I've been belly dancing for the past 5 years. I'm a very strong believer in karma, and I do believe that what goes around does come back around. Also, I'm a firm believer in feminism and girl power. I feel a girl should not be held back from what she can do and her potentials just because she's a girl. I have never been told how to behave like a girl. Really, do not judge me on my tiny frame because I'm a belly dancer, but I ride bullets. Thank you. 4. I am a passionate lifestyle and fashion blogger by profession and model. I have always dreamed and I always believe in dreaming. I think it's a certain quality in every person that defines you. I am a person who would like to describe myself as an explorer. I do have hobbies, but exploring helps you grow in your life, and I truly believe in the faith. Also, I'm very happy to share that just yesterday I got featured in one of the international magazine from Manchester for my blog work. Also, I have वर्धमान फैंटेसी फेस ऑफ द ईयर, डिज़ाइनर ऑफ द ईयर हम लोग अपने लास्ट 18 ईयर से कर रही है. 18वां शो है, 97 से शुरू हुआ है. हम लोग न्यू फैशन डिज़ाइनर को चांस देते हैं. फैशन डिज़ाइनिंग कॉन्टेस्ट होता है जिसका टाइटल है डिज़ाइनर ऑफ द ईयर, वर्धमान फैंटेसी डिज़ाइनर ऑफ द ईयर. एंड उसके साथ एक ब्यूटी पेजेंट करते हैं जिसका टाइटल है फेस ऑफ द ईयर. उनमें भी न्यू कमर्स को ही चांस मिल दिया जाता है. आपका योगदान कैसा रहेगा इस इवेंट का, किस तरह से रखना था? क्योंकि न्यू कमर को कोई भी चांस नहीं मिलता है. सब लोग उनको बोलते हैं एक्सपीरियंस लाओ. एक्सपीरियंस तब आएगा जब किसी को कोई चांस मिलेगा. चांस ही नहीं कोई मिलता तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा. इसको एक्सपीरियंस को परस्यू करने के लिए, सिंपलिसिटी करने के लिए उनको न्यू कमर्स को आगे लाते हैं कि न्यू कमर्स आगे आए और ऐसा कुछ उनको बेनिफिट मिले. लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, बहुत सारे लोग आए, क्या कहना चाहिए? लोगों का सपोर्ट है, इसके लिए तो हम 18 ईयर से कर रहे हैं. अदरवाइज और लोग सब बाहर से पैन इंडिया लेवल पे है ये. अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेंट पार्ट ले रहे हैं फेस ऑफ द ईयर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, वो नागपुर से है, पूना से है, दिल्ली से है, उड़ीसा से है, कलकत्ता से है
अलग अलग शहरों से आए हैं, अपने खर्चे पे रह रहे हैं, उनका आना जाना सब उनका खर्चा है, उनको शौक़ है, उनको न्यू कमर्स को लोग चांस देते हैं, इसके लिए बेनिफिट है। और डिज़ाइनर ऑफ द ईयर में जो फैशन डिज़ाइनिंग आए हैं वो लोग भी बाहर से आए हैं और वो लोग भी न्यू कमर्स है, उनको हम चांस दे रहे हैं। ऐसा अब फेस ऑफ द ईयर की बात करें तो सर इनको अगर फेस ऑफ द ईयर चुना जाता है तो उनको कोई प्लेटफॉर्म भी मिलता है? यस, प्लेटफॉर्म मिलता है। अभी हम लोग ने एक सॉन्ग म्यूजिक वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है ओ छोरी। इसके अंदर भी सारे न्यू कमर्स है और न्यू कमर्स को ही चांस दे रहे हैं। ओके, कितने लोगों को अब तक चांस मिल चुका है? बहुत लोगों को चांस मिल चुका है, फैशन इंडस्ट्री के अंदर, मॉडल इंडस्ट्री के अंदर भी। हमारे वर्धमान फैंटेसी फेस ऑफ द ईयर के जो मेन स्पॉन्सर है मिस्टर राजेश भाई। जी राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है आज? ये एक आपको खुशी की बात बताऊँ, ये हम लोग का 5वां साल साथ में है। 2012 से है, 5th ईयर इट इज़। जी राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? देखिए, खुशी तो हमेशा रहेगी जब कोई अच्छा काम होता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, जहाँ से मॉडर्न इंडस्ट्री से जो लड़कियाँ प्रतिभावान रहेंगी, जब वो आगे जाती हैं तो उनको काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करने का मिलता है, काफ़ी फिल्म्स में रोल मिलते हैं, सीरियल्स में मौका मिलता है। तो रियल में पेजेंट एक है, बहुत हैवी कंपटीशन है। और इस कंपटीशन में सिर्फ मुंबई से ही लड़कियां नहीं हैं, दिल्ली से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, नागपुर, पूना, तो वो इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। जिनमें जो क्षमता है उस क्षमता को पूरा करके वो हैवी कंपटीशन में जब आगे आएंगे तो ज़िंदगी में हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। और उनका जो मॉरल है, जो पर्सनैलिटी है, वो पूरी ग्रूमिंग करवाते हैं यहाँ पे कि वो स्टेज पे जाके इतने लोगों के सामने बोल सके, खुद को परफॉर्म करके अच्छा दिखा सके। तो मेरे ख्याल से अच्छा प्लेटफॉर्म है और नेचुरली इसलिए खुशी होगी कि हर साल इसको जब जैन एशिया ऑर्गेनाइज़ करता है तो वर्धमान फैंटेसी साथ में टाइटल स्पॉन्सर रहता है और एक अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग हमेशा रहा है। धन्यवाद। ट्रांसपेरेंटी की बात करें तो किस प्रकार से इसको? ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कंटेस्टेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट है। यहाँ पे पूरा मार्किंग सिस्टम रहता है और वेरियस जूरी मेंबर अलग अलग इंडस्ट्री से रहते हैं, मॉडल इंडस्ट्री से भी, फैशन इंडस्ट्री से भी। तो जब टोटल मार्क्स कलेक्ट होते हैं और आप देखेंगे हर साल जब हमने विनर्स को अनाउंस किया है तो वही विनर्स ऑडियंस के भी रहते हैं। हम अनाउंस करने के पहले भी विनर्स को पूछते हैं कि कौन सा नंबर रहेगा, तो टेंटेटिव वही नंबर्स आते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है, पब्लिक ओपिनियंस को आप मैच कर लेना, एकदम सेम मिलेगा। थैंक यू। बम्बई के सब बड़े में बड़े अवार्ड्स का मैं हिस्सा हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा अवार्ड मुझे लग रहा है। और फेस ऑफ द ईयर और डिज़ाइन ऑफ द ईयर सर जो कर रहे हैं उसके लिए मेरा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। और अच्छा क्राउड भी अंदर है, मॉडल लोग भी अच्छे हैं। और मैं 19 जन का फेस भी देखा, उनका इंटरव्यू भी 2 मिनट देखा। तो इन्होंने सिलेक्शन अच्छा किया है और ऑल ओवर इंडिया से इन्होंने ढूंढ के अच्छे अच्छे लड़की। वी आर वेरी थैंकफुल टू योगेश भाई, फ्रॉम मैनी ईयर्स वी आर कोलैबोरेटिंग, है ना। बहुत साल हो गए। इवन मेरे डैड इनके बारे में बताते रहते हैं, बहुत साल हो गए ये हमारे साथ हैं। मैं तो नहीं बोल सकता, बट येस मेरे डैड ने और इन्होंने बहुत मतलब कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ही की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जितने इंडिया में अगर अंदर की बात करें तो क्या आपने देखा? और मैं सिर्फ 2 ही मिनट के लिए देखा, मैं सिर्फ 2 ही मिनट देखा। उतने में मुझे बाहर इंटरव्यू के लिए बुला दिया, तो मैं अभी पूरा देखा नहीं, सिर्फ 2 मिनट का देखा। और जितने भी इंडिया में अवार्ड्स होते हैं 100, तो उसमें से 95 हमारे पास है। सब बड़े में बड़े, फिल्म फेयर, फेमिना, आईफा, दीवा, ग्लेटरे, स्क्रीन, स्टारडस्ट जी। तो हर एक का एक अपना एक लेवल रहता है, हर एक का एक प्यार रहता है और हर एक का एक अपना स्टैंडर्ड रहता है। लेकिन ये अवार्ड में इनके प्यार ने मुझे यहाँ बुलाया हुआ, क्योंकि हमारा पर्सनली दोस्ती है सर के साथ और हमारे ऑफिस के सामने इनका भी ऑफिस है। तो मैं चाहता हूँ इनका अवार्ड सुपर डुपर हिट होवे, इनका भी ब्राइट फ्यूचर होवे। और सभी सुपरस्टार की लाइफ की पहली पिक्चर मैंने की है, शाहरुख, सलमान, ऋतिक, रणवीर, दीपिका मल्लिका, बिपाशा, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर। तो चाहता हूँ कि इनका भी अवार्ड वर्ल्ड वाइड फेमस होवे, बहुत बड़े टेलीकास्ट होवे। ब्राइट की बात करें तो फेस ऑफ द ईयर यहाँ पे चुना जाता है, तो ब्राइट क्या उसको सरप्राइज देने वाला है? जी, मतलब मेरे होर्डिंग सोलर मुंबई में है। मैं मेरे क्लाइंट्स को मैं सजेस्ट करेगा और उनको मॉडलिंग का और उनको होर्डिंग पे आने का चांस मिले। और मैं फिल्म में भी रिकमेंड करेगा, गारंटी नहीं देगा, लेकिन कोई अच्छे फिल्म में हाँ ना, मैंने कमिटमेंट नहीं किया है। मैं बोला रिकमेंड करेगा, मैं ट्राई करेगा। और होर्डिंग्स के लिए मैं कमिट कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा प्रोडक्ट है। कोई अच्छे प्रोडक्ट के साथ उनका मॉडलिंग का काम उनको मिले। और हर सुपरस्टार आज भी चाहता है कि मेरे होर्डिंग्स पे आवे, क्योंकि होर्डिंग 24 घंटा दिखता है, लार्जर देन लाइफ रहता है और एकदम ह्यूज इल्यूमिनेटेड होर्डिंग्स रहते हैं।
योगेश जी, जैसे कि आपका जो बिजनेस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में है और बहुत आप हर जगह स्पॉन्सर करते हैं, तो आगे आपकी क्या रणनीति है? बिजनेस लगातार आपका बढ़ता जा रहा है और बहुत फेम मिल रहा है आपको, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली क्या है ना, जा रहा है और कंधे से कंधा राइट लगा है। मैंने एक एक रुपए का रोड पे न्यूज़पेपर बेचा है, माचिस बेचा है, गरीबी से मैंने मेहनत करके इतना ऊपर आया है। आज मेरा इंडिया में नंबर 1 पे नाम है बिकॉज ऑफ मेरे माँ बाप के आशीर्वाद, भगवान का और क्लाइंट का सपोर्ट। और मैं बिज़नेस करने के लिए सब अवार्ड स्पॉन्सर नहीं करता हूँ। मेरे अवार्ड के जरिए या कोई भी स्पॉन्सरशिप के जरिए बहुत जन का घर चलता है, बहुत जन को जॉब मिलता है, बहुत जन को प्रमोशन मिलता है, बहुत जन को आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म मिलता है। तो मैं भी जब छोटा था मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया था, मैं खुद मेहनत करके दिन का 15 घंटा काम करके ऊपर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे हर इवेंट्स का मैं हिस्सा बनूँ जिसके जरिए लोगों को आगे आने को मिले। अभी शाहरुख, सलमान, ऋतिक, कोई भी पहले ग्लेडरेज में भी बहुत बड़े लोग आए जो भी आज फिल्म स्टार बने, सुपरस्टार बने। तो इस तरह का ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हर आदमी दुनिया में छोटा रहता है फिर बड़ा बनता है। तो हर एक को एक सपोर्ट मिले और मेरा मीडिया के जरिए उनके लोगों तक बात पहुँचे और मैं हर तरह से मेरा मीडिया में उनको मदद करूँ। ऐसे मेरी दिल की चाह के लिए मैं इधर आता हूँ, ना कि मेरा अभी ब्राइट नाम तो मेरा बहुत हो गया। मैं नाम के लिए नहीं आता हूँ, लेकिन सबको सपोर्ट करने और सबकी दुआ लेने और सबको एक आसमान पे उनके जो सपने हैं वो पूरे करने के लिए मेरी ओर से जो कोशिश हो सके उसके लिए मैं आता हूँ। 1997, so it's a long registration. And as a beauty partner, we are proud that Olivia is associated with such a good program and it's doing really well and we really like it. Thank you. चतुर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? I am very much thankful to the Olivia. They are giving the support, always. And Mr. Yogesh Lekhani also. They are always given the open-hearted support to do such type of event and give the platform to the newcomer. The new people should come forward and they get a good and beautiful chance to work in this industry. So I am very much thankful to both of them. I've come here for this event because one of my dear friend Nagma has invited me, and she's the organizer of this event, and I think she's organized it very beautifully and it's very entertaining, and everything is very good and fine, and I hope all the best for her future venture also. Okay, they are giving new platform to the new designer, especially the youngster, who normally search for a platform to showcase their talent. Okay. They are giving platform to newcomers, the students who learn designing. Okay. Designers. Normally they need to search the platform to showcase their talent, but they are giving a good platform to the new designers. This is a very nice attempt actually from this media and even the event which Vardhaman people have arranged. And I think you need to push new talents across because it's very rare that you come across new talents, and it's very difficult in this industry nowadays with a lot of people coming all over from Pan India to Mumbai, and day by day the competition is going tough. So this kind of platform will encourage them and give them a lot of scope. And I hope these people keep on encouraging new talents. Okay, Hassan, the very last question to you. What's happening on professional front? What's there in pipeline? On the professional front, I've just finished one film called Sweetie Desai Weds NRI. It has Himansh Kohli and Zoya Afroz and Darshan Jariwala, apart from other rest of cast. And that is to be released earlier this end of this year or early next year. And apart from this, I finished one Pakistani film that is called Shor Sharaba, and that is also in the post. So this is what I've done for this year, and let's hope for next. नगमा जी, आप जैसे कि लगातार बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इवेंट होने चाहिए, तभी तो हम मीडिया को और पीआर से काम, सॉरी मुझे मत मेरे को ऐसा लग रहा है अमीन सानी है साथ में, मौका भी है, दस्तूर भी है। मैं अभी तो आया हूँ, अभी अंदर जाऊँगा, देखूँगा, उसके बाद पता चलेगा है क्या। हाँ वही, अभी तेरी आँखें सेंटर देखूँ कैसे बेटा। क्या कहना चाहेंगे? एक नया प्लेटफॉर्म दिया है जो न्यू कमर्शियल डिजाइनर की हम बात करें या फेस ऑफ द ईयर फिल्म की बात करें। भाई सच कहूँ, मैं यहाँ पे मंजीत सिंह के लिए आया हूँ। मंजीत सिंह अपना भाई है, उसको सपोर्ट करने आया हूँ और नए टैलेंट को
जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको जज करूँगा। वैसे आई डोंट लाइक टू जज एनीवन, तो मैं तो सिर्फ देखूँगा, उसके बाद जो भी है जिसका जो भला हो कर देंगे। ओके, किस बिना पे आप जजिंग करेंगे जब आप तो सीट की उस तरफ रहते हैं और आपको जज करना होता है? क्या चीज़ें रखेंगे जहन में, यू नो, व्हाइल जजिंग एनीबॉडी? Like I told you, I don't judge anyone, but I will see who's walking nice, like you know, like जो होना चाहिए। और कपड़े किसने अच्छे बनाए, डिज़ाइनर ने कुछ क्या यूनिक किया है, कितना अच्छा किया है, उस पर डिपेंड करता है। प्लस जो बॉडी फिट बॉडी भी बहुत ज़रूरी है। सो लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, इन मॉडलिंग बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं वो सब देखूंगा और उसके बाद जो भी वेल डिज़र्व होगा उसको इंशाल्लाह विनर बनाएंगे, ना कि बिग बॉस की तरह मैं डिज़र्विंग था और किसी और को बनाएंगे। ओके, आपकी फिल्म लवडे भी आ रही है, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? और आपका ये लुक और बियर्ड लुक क्या उसके बारे में ये कहा जाता है कि यूं ही खामोश क्या हुए लोगों ने कैसे कैसे फसाने बना दिए। बहुत समय के बाद लव डे लेकर आ रहा है एजाज खान, क्या कहना चाहेंगे? जी, यही कहूँगा कि मेरे झुक के चलने को बुज़दिली ना समझ, ये तो खुदा का खौफ है कि सर को झुका के चलते। सेंसर ये सर्टिफिकेट दे के 14 कट दे दिया था मेरी फिल्म को, लेकिन कहते हैं ना, जब फैसला आसमान से आता है तो ज़मीन वाले कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह ऊपर वाले ने और अल्लाह ताला ने दोनों ने एक साथ मिलके मुझे यूए सर्टिफिकेट दिया है। हाई कोर्ट, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू एवरीबडी हु सपोर्टेड मी फॉर दिस फिल्म। एंड अब 14 अक्टूबर को फाइनली सबके लगने वाले हैं लव डे। एजाज, कितना होप है इस फिल्म की हम बात करें, सेंसर जिस तरह से अपनी मनमानी करता आ रहा है और हाल फिलहाल में जिस तरह के वाक़यात नजर आए, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के मिला के 100 करोड़ होंगे, 100 करोड़ की आबादी। वो 100 करोड़ लोग क्या देखना चाहते हैं, वो ये 5 लोग बैठ के कैसे डिसाइड कर सकते हैं यार? ये 5 लोग बैठे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि 100 करोड़ हिंदुस्तानी और यूथ क्या देखना चाह रहा है। और उनमें से कुछ तो फ्रस्ट्रेटेड है, उनके तो साले की पिक्चरें फ्लॉप हुई है, कुछ लोग पता नहीं उम्र हो गई है, बीवी परेशान कर रही है, कुछ लोग के हस्बैंड उनके साथ मतलब ठीक से पेश नहीं आ रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेटेड लोग बैठ के सक्सेसफुल और न्यू कमर आने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, मतलब निहायत ही फ्रस्ट्रेटेड। सेंसर होना ही नहीं चाहिए। अरे मेरे भाई, कहीं ना कहीं आप मांग करते हैं कि सेंसर फ्री होना चाहिए भारत, सेंसर फ्री होना चाहिए भारत। अरे पूरी दुनिया सेंसर फ्री होनी चाहिए। कौन होता है, कौन डिसाइड करने वाला सेंसर, किसको क्या पहनना है, किसको क्या जीना है? ये आप कौन होते डिसाइड करने वाले यार? पूरे यूथ को पता है उनको क्या करना, वो करेंगे। मतलब एजाज खान मांग कर रहे हैं कि सेंसर फ्री हो भारत। अरे सेंसर फ्री भारत नहीं, पूरी दुनिया सेंसर फ्री होनी चाहिए मेरे भाई। और जी उसके अलावा इस बार आपकी जो फिल्म आ रही है लव डे, उसको लेके ऑलरेडी इतना हाइप हो गया है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, लेकिन सुर्खियों में, खबरों में है फिल्म। कितना फ़ायदा होगा फिल्म को, और इस बार कितने थिएटर में रिलीज होगी? यार अगर काश ये मुझे पता होता कितने थिएटर में होंगी। अगर मैं सलमान खान होता तो मैं तुम्हें बताता कि मेरी फिल्म 4000 थिएटर में रिलीज़ होगी, पर ऑल इंडिया में रिलीज़ होगी। और थिएटर तो तुमको 2 दिन के पहले ही पता चलते हैं कि कितने थिएटर तुम्हें मिलते हैं। और इंशाल्लाह मुझे हर फिल्म को मेरे अच्छे ही थिएटर मिलते हैं, अपना ऑडियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार जो ये फिल्म है, ये मेरे प्रोड्यूसर ने एक अलग लेवल पे इस पर मेहनत कर रहा है। ऑलरेडी सेंसर की वजह से मेरे प्रोड्यूसर को 1.25 करोड़ का नुकसान हो गया। थिएटर बुक किए थे, चीज़ें बुक की थी, उन्होंने फिर 9 का आगे कर दिया, 9 का फिर 23 कर दिया, 23 का भी 14 हो गया। तो इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा। आई एम होपिंग कि ये फिल्म लोग देखें और दोस्ती क्या होती है उन्हें पता चले। जो लालची दोस्त दुनिया में ग्रीड और स्टेटस देख के दोस्ती करते हैं, वैसे दोस्तों से अल्लाह बचाए। ऐसा कोई बॉलीवुड में दोस्त टकराया आपको जिसने लालच से आपसे दोस्ती के हाथ मिलाया? ऐसे तो बहुत लोग हैं। किसी एक का नाम बताना चाहें? नाम लूँगा तो फेमस हो जाएगा साला। थैंक यू। एजाज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब एजाज कोई धमाका करते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? बस यही कहूँगा कि मेरे दुश्मनों, मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो। मैं घर से दवा नहीं, माँ की दुआ लेके निकलता हूँ। और मेरी खुशियों के लिए भी दुआ मत करना, क्योंकि मैं तो वो हूँ जो खुशियाँ भी बांट दिया करता हूँ। तो चलते रहो और हम चलते रहे। एजाज भाई, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन, मतलब कहते हैं कि 18 से 20 शहीद हमारे जवान हो गए।
उनके लिए, जैसे अभी आपने कुछ सवाल उठाए थे कि हिंदू मुस्लिम लोग बंटवारा कर, क्या कहना चाहेंगे और कितना कितना इसका ये किया जाए, आलोचना की जाए जितना कि कम है कि सोते हुए सैनिकों को मारा गया है? जी भाई, इस तरह सोते हुए किसी दिन सो रहे होंगे रात को सब, और इस तरह लोग पाकिस्तानी या कोई भी आके हमें भी मार सकता है अगर जब तक हम लोग ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंद ना करें। जब तक हम ये करें कि हम सरदार हैं, हम सुपीरियर, हम मुसलमान हैं, हम सुपीरियर, हम हिंदू हैं, हम सुपीरियर, हम सुपीरियर, ये बंद नहीं हुआ तो मजाक नहीं। ये गांधी जी, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, ये लोगों ने, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, हम जैसे चू उनको आज़ादी दिलाई है, ये लोग वापस किसी के ग़ुलाम बन सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनको कास्ट में बांट दिया गया है और ये वो अंग्रेज़ों करके गए थे। अब अंग्रेज़ों के जो कुछ कुत्ते फॉलोवर बचे वो इसको फॉलो कर रहे हैं, पॉलिटिशियन लोग, नेता लोग, चोर लोग, ये सब लोग कर रहे हैं। और हमारे देश के यूथ को ये समझना है कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है, नहीं तो क्या होगा कि नफरत में तो जानवरों का भी बंटवारा हो गया, गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो इससे बचो मेरे भाई। गौ रक्षा करने से अच्छा देश की रक्षा करो, गौ रक्षा करने से अच्छा बहनों की रक्षा करो जिनके रेप हो रहे हैं, गौ रक्षा करने से अच्छा भाई आसपास के तुम्हारे जो मोहल्ले वाले हैं, तुम्हारे जो गरीब लोग हैं, उनकी रक्षा करो मेरे भाई। गौ रक्षा क्या गौ रक्षा भाई, गौ की रक्षा ऊपर वाला करेगा, हम कौन होते हैं गौ की रक्षा करने वाले? एजाज खान जब एकता की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैंने टीवी पे भी देखा था आपको, और प्रेम शुक्ला, मैं नाम भी ले लेता हूँ, प्रेम शुक्ला, जिन्होंने कहा था कि ये कौन है एजाज खान, क्या बेचता है, क्यों ऐसा कहते हैं? जी अरे प्रेम शुक्ला जी वही है जो मांस मतलब बीफ बैन करवाया है। सही है, बीफ बैन कराओ, लेकिन भारत का प्रेम शुक्ला जी और मोदी जी और जितने भी लोग हैं, मैं उनसे ये कह दूं कि सबसे ज़्यादा बीफ जाता है, एक्सपोर्ट होता है भारत से। तो ये कौन करता है, ज़रा इसका पता लगाइए प्रेम शुक्ला जी। और सैनिक इतने घायल हो गए, इतने मर गए, इतने शहीद हो गए, उनके लिए भी कुछ करवाइएगा, क्योंकि उनकी फैमिली को बाद में ना स्कूल की फीस मिलती है, ना पैसे मिलते हैं। और देश के लिए जान देने वालों का तो आप देख ही रहे हो, भगत सिंह की फैमिली का क्या हो रहा है। इतने तो कभी सनी लियोन ने भी नहीं पकड़े होंगे। थक गया बहुत यार। डन, चलो। Ejaz is here to support you. What do you say? How proud you feel? You know, Ejaz is there supporting your initiative. I mean, very, 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 very humble person he is, and I'm gratefully thank you in front of you all. I mean, I'm not being shy कि भाई नहीं he's my friend करके, no, he's my friend. वैसे ये बता कितनों ने वादा किया था, कोई आया नहीं, खाली एक ही एक्टर वादा निभाता, उसका नाम है एजाज खान। एजाज खान, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ। The moment you approach him, what was his first reaction? You know? First he told me कि भाई yes, then he told me tell me the concept, then we hit proceed, right? जैसे एजाज ने कहा कि अमूमन ऐसा होता है और आप किसी को बुलाते हैं, कोई आ नहीं पाता है, और एजाज को आपने फ़ोन किया, उनकी दरिया दिली के बारे में क्या कहना है? क्या आपको सलमान नजर नहीं आते हैं? आपको दिख नहीं रहा? लेकिन we know him. नहीं, वो तो मीडिया तो जानती है, मीडिया ये पूछ रही है कि तू बता कोई ऐसा तेरे को सपोर्ट किया क्या उसके पहले? नहीं कि फिर सब पब्लिक बोली कि भाई 5 पेटी भिजवा दो, 10 पेटी भिजवा दो, 15 भिजवा दो, भाई सूट के पैसे भिजवा दो, मैं नीचे स्टाफ के भिजवा दो, मैं नीचे क्या कहना चाहेंगे? तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एजाज भाई का, मिस्टर एजाज खान का, यहाँ आने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, एंड आई एम बीइंग थैंकफुल। मैंने ये भी कहा कि मैं यहाँ पे इसके लिए आया हूँ। ये लड़का मुझे मानता है और इसने जब मुझे पहली बार फ़ोन किया था, उसने बोला भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ, और मेरे डैडी एक शो बहुत सालों से करते हैं, अभी वो शो वापस हो रहा है, मैं चाहता हूँ उसके जज आप बने। और मैंने इसको वादा कर दिया, बाद में पता चला कि आज है, आज मेरा बहुत बड़ा इवेंट था, एक मेरे PR वाले दोनों खड़े, कपिल और वो भी भड़क गए, लेकिन मैंने बोला भाई वादा किया है, निभाना पड़ेगा, वरना छोकरा मर जाएगा बेचारा। थैंक यू, थैंक यू।
बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये बोल रहे थे कि यहाँ पर कुड़ियों के साथ उनको कुछ टाइम स्पेंड करना था, लव के बारे में कुछ बोलना था और लव डे के बारे में कुछ बोलना था। सब से आप अगर कुछ कहें लव डे के बारे में प्लीज। इसने राखी की याद दिला दी है। लव डे है और हम सबको पता है लव डे। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, ऑल द गर्ल्स, यू ऑल लुकिंग सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। बट मुझे वो व्हाइट वाली बहुत अच्छी लगी, नंबर 2 वाली। सब अच्छी है वैसे तो, लेकिन नंबर 2 और यहाँ से ये ग्रीन 13 नंबर 2 13 13। वैसे सभी अच्छी है यार, बुरा मत मानना प्लीज। आई एम जस्ट जजिंग, दैसिंग जज, बट आई एम नोबडी टू जज, इसलिए मैंने वो पेपर वापस दे दिया। मैं इनको जज करूंगा तो मुझे कौन जज करेगा यार। जज करना बहुत बुरी बात है, बट यहाँ पे कुछ जजेस बैठे हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग हियर, ऑल द जजेस, ताली बजाओ इनके नाम पे। एंड मंजीत जो बहुत प्यारा बच्चा भी है, बहुत वैसे बच्चा नहीं है, बहुत बदमाश भी है, लेकिन आई लाइक हिम बिकॉज इसने मुझे बोला भाई आपको आना है मेरे शो पे, और मेरे डैड का शो है। मैंने बोला ठीक है, जहाँ से प्यार से मोहब्बत से जहाँ बुलाया जाए वहाँ तो जाना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच मंजीत। एंड अंकल प्लीज कम, मंजीत प्लीज कम ऑन द स्टेज यार। आप जरा इनसे कुछ कहना चाहेंगे लव डे के बारे में? तुम बोलने दोगे तो बोलूंगा यार, मतलब बताइए सर सामने। बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और अच्छाइयों ने मुझे बदनाम कर दिया। लायर, लायर, यस आई एम अ वेरी बिग लायर। आई एम लायर, लायर, लायर। कौन बोला? एस ऑन फायर। आई एम हियर टू
actually promote my film also, Love Day, which is coming on 14th Feb. नहीं यार 14th October है यार. लव डे 14 फरवरी को होता है, लेकिन ये फिल्म ऐसी है कि 3 दोस्त जब भी मिलते हैं, और एक्चुअली यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका कोई ऐसा दोस्त हो जिसके वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो. बीवी बोलती हो इसके साथ मत घूमना, माँ बोलती हो इसके साथ मत घूमना, बॉस बोलता है इसके साथ मत घूमना, लेकिन फिर भी वो उसके साथ घूमते हैं. किसका है? चलो है तो सही. बाकी आज तो दोस्ती भाई एकदम पुराने जमाने में जब हमारे माँ बाप की दोस्ती हुआ करती थी, एक अलग लेवल पे दोस्ती होती थी. क्यों अंकल? आज की दोस्ती तो स्टेटस पे हो गई है. BMW है तो अच्छा दोस्त, ये है तो अच्छा दोस्त. गरीब दोस्त को तो कोई बुलाता ही नहीं, बोले आएगा फोकट की दारू पिएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा. बट हमारी फिल्म इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप. जो आज की डेट में दोस्ती खत्म होती जा रही है, उस पे बोलते हैं ना कि दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर वक्त के साथ साथ दोस्तों का पता जरूर चलता है. तो तुम्हारा असली दोस्त कौन है वो तुम्हें तभी पता चलता है जब तुम उसके साथ कुछ वक्त बिताते हो. क्योंकि आजकल तो when you meet somebody जैसे हो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, 2 दिन में बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, चौथे दिन दुश्मन बन जाते हैं. तो इट्स नॉट लाइक दैट. दोस्त का पता तुम्हें वक्त के साथ ही चलेगा. दोस्तों के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है, और दोस्तों को दिल से चूज करना बहुत जरूरी है. एंड माई फिल्म लव डे इज ऑल अबाउट दैट. फ्रेंडशिप, क्रेजीनेस, लॉयल्टी एंड फन. इट्स अ रोड ट्रिप. मेरी फिल्म जाके देखिएगा जरूर. सेंसर ने मुझे बहुत परेशान किया, पर फिर भी हमें यूएस सर्टिफिकेट मिला है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है. बोलते हैं मेरे दुश्मन के तेरे पास ऐसा क्या है कि तेरा इतना चर्चा है. मैंने भी कह दिया कि मेरा दिल नरम, दिमाग गरम, बाकी सब मेरे अल्लाह का करम. सो एंड जो शहीद, इतने सारे शहीद हुए हैं अभी देश के लिए, उनके लिए भी हम सबको दुआएं करनी चाहिए. और मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, उनको, उन शहीदों के घर वालों को और उनकी फैमिली का जो भी बनता है, क्योंकि अभी मैं बीटा सिंह जी से मिला जो जिंदा शहीद है. उन्होंने बताया कि फौजी के घर वाले, फौजी तो अपनी जान दे देते हैं, लेकिन फौजियों के घर वालों को कुछ मिलता नहीं. वो एक बार अपनी जान दे दी, उसके बाद किसी का नहीं. उनका हाल भी भगत सिंह की तरह ही होता है. जिस तरह भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, उन लोगों के घर वालों को आज तक ना कुछ मिला है. उन लोगों ने हम जैसे लोगों के लिए जान दी. तो सबकी कुर्बानियां जाया जा रही है. वी आर लुकिंग फॉर ऑनेस्टी, बट मिलेगी नहीं, क्योंकि देना बहुत जरूरी है. सो आई विश ऑल द लक टू मंजीत एंड योर फादर एंड एवरी गर्ल हुज हियर. जितनी भी है सब अच्छी है. मैंने तो 2 नंबर और 13 नंबर बोला था, लेकिन प्लीज डोंट माइंड. मुझे ये 2 अच्छी लगी लड़कियां, जो चलने में भी और देखने में मुझे, तो मैं ये 2 को थोड़े से मार्क देता हूं. सर थोड़ा सा प्लीज कंसीडर मी. मिस्टर योगेश लखानी जी, मिस्टर योगेन शाह, माय ब्रदर, वेरी गुड फोटोग्राफर. हमारी पंजाबन कौर, मेरी जान गुरप्रीत, थैंक यू. एंड सर भी बैठे. एंड वर्धमान जी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग न्यू टैलेंट. आप ऐसे काम करते रहिए. अच्छे काम करना बहुत जरूरी है. बोलते जब मर जाते तो जनाजा हल्का रहता है, नहीं तो लोग उठा नहीं पाते हैं. बोले बहुत बड़ा पापी था. थैंक यू टू ऑडियंस, थैंक यू एवरीवन. तो अच्छे काम करना बहुत जरूरी है. एंड द प्रिंसेस इन द ब्लू लुकिंग सो ब्यूटीफुल. आपके हस्बैंड तो नहीं है बाजू में? थैंक यू यार. कल मैं एक शो में गया, वहां पे कुछ बोल दिया, बाहर हस्बैंड और उसके 5 बॉडीगार्ड खड़े हुए, बाहर आने दो एजाज खान को. मैं बाहर गया, मैंने जाके देखा. मैं सर क्या हुआ? बोले अभी अंदर तो मेरी बीवी की बहुत तारीफ कर रहा था. अभी बोल क्या बोलता है? अरे बोला भाई, तो उसकी बीवी आगे अच्छी खासी बीवी थी भाई. तो बीवी आगे बोलती है तुम तो कभी तारीफ करते नहीं हो, इसने की तो इसको कुछ बोलोगे तुम? अभी बहुत. तो मैंने कहा भाभी जी मुझे गाड़ी में बिठाइए, जाने दीजिए यहाँ से. भाभी जी ने बचा लिया. हिंदुस्तान की सारी भाभियों को बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच, थैंक यू. एंड ऑडियंस, थोड़ा सा ठंडा है लेकिन चलेगा. बारिश बहुत हो रही है आजकल. पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. हेलोजन की लाइट मेरे मुंह पे ऐसी मारी हुई है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. ऐसा लग रहा है मैं अंधा हो गया हूँ. और यहाँ पे जितने लोग बैठे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. थोड़ी लाइट कम करोगे क्या? खूबसूरत खूबसूरत लोग बैठे हैं यहाँ पे यार. हाय गर्ल्स, क्या मजा आ रहा है कि नहीं शो में?
तो क्या पानी वानी नहीं पी के आवाज नहीं आ रहा? क्या हम पागल है क्या? सूट बूट पहन के यहाँ पे आए हो तुम लोग को एंटरटेन करने के लिए यार। हाय हाय, बोले बोले बोले, क्या बात है। हाँ, खान आया तो मजा तो आएगा ही। और कोई दिख रहा है मुझे यहाँ पे? थोड़ा यार आवाज तो करो, कुछ सुनना चाहोगे कुछ? अजी और जोर से आवाज जी इजाज खान के लिए। मेरे लिए आवाज नहीं, थोड़ा एनीथिंग यू गाइस वांट टू। किसी की कोई फरमाइश? अरे यार ये एक नंबर से एक नंबर आप सब लोग हो यार। मैं तो, मेरा कोई नंबर ही नहीं है। मेरा नंबर तो बस 7861 फोन आएगा, उसके बाद काम हो जाएगा सबका। बट एक नंबर जोरदार जोरदार। चलो यहाँ की सारी खूबसूरत लड़कियों के लिए मैं 4 बातें सुना देता हूँ। एक प्यारा सा गाना सुना देता हूँ जो मेरी फिल्म का गाना है। और इस गाने का सबसे बड़ा गहरा राज ये है कि ये लड़की के लिए नहीं, ये दोस्तों के लिए बनाया गया। खिजा ये खिजा बदल जाएगी, ये मौजे फना बिखर जाएगी, कशी से मगर ये दिल से कभी चाहोगे तो ना निकल पाएगी। है खातिर तेरे निछावर मेरे, है यार है दोनों जहां के आपास आ। ऐसी है तेरी दोस्ती, इस अर्श से उस फर्श तक है बस तेरा मेरा जिक्र ही। मोहित चौहान ने गाया था भाई, इतना खींच खींच के मैंने गा दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू इजाज भाई, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर याद दिला दूं सबको, अक्टूबर 14 लव डे जो इजाज भाई का मूवी जो रिलीज हो रहा है। और थैंक यू। सबसे पहले लाइक टू कांग्रेचुलेट वर्धमान ग्रुप मंजीत इतना टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। फील्स रियली नाइस, वेरी गुड इवेंट। सर क्या पसंद आया सर आपको इवेंट में? जो 19 जो कलाकार थे, जो मॉडल्स थे, उनको जो न्यू कमर्स थे तो उनको प्रोत्साहन दिया गया, क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, सचमुच बहुत अच्छा लगा कि जो टैलेंट जो दिख रहा है, अब कर आ रहा है, इट लुक्स रियली नाइस। और स्पेशली द वे दे बीन ड्रेस्ड अप, द डिजाइनर्स, दे डन अ रियली गुड जॉब। थैंक यू, थैंक्स। Well, सबसे पहले I would like to thank Nagma ji because the kind of way she's handling my PR, it's really very nice. It's been just been a month and the way she's taking care of me, और जहाँ Simca she's taking Simca, promoting Simca, is really good job. So yeah, really happy the way she's promoting my company. सर आपकी जो नगमा मैम है लगातार प्रमोट कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? लगातार बड़े बड़े वेबसाइट, न्यूज़पेपर में आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? Well, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा because the way she's promoting मैं वही बोल रहा हूँ. She's done a great job for me. ऐसा लग ही नहीं रहा कि it's just been a month she's handling my company, but I think the way she's doing within a year's time, she should do wonders for Simca Advertising and Batliwala Group. क्या कहना चाहिए मैडम? आप सर बहुत आपको प्रेज कर रहे हैं और आप नहीं, ये इनका बड़कपन है जो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। ये खुद एक बहुत बड़ी तारीफ़ के काबिल हैं और ये काबिल हैं इसलिए मैं इनका PR कर पा रही हूँ। अगर ये काबिल नहीं होते मैं इनका कभी PR नहीं करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। How's it? Okay, tell us how come Aman is here? Aman is my very good friend, and we had done very good events together earlier. And मैंने इनको अपने concept के बारे में बताया that we are doing since this fashion show since '97.
ओके, सो मैंने इनको पूरा अपना कंसेप्ट बताया था, तो इनको कंसेप्ट बहुत क्या कहना चाहेंगे, क्या व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन मूवमेंट मंजित अपूजी को फैशन की बात हो रही है, ग्लैमर की बात हो रही है, एंड ही इज़ अ फैशनिस्टा बाय द वे। जेन एशिया फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वर्धमान फैंटेसी फेस ऑफ द ईयर की जो इन्होंने आयोजन किया है, इन्होंने बहुत ही सॉट आफ्टर एक थॉट है, क्योंकि प्लेटफॉर्म दिया है उन लोगों को जिन लोगों को मौका नहीं मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का और अपना टैलेंट बखेरने का। पूरी तरीके से यहाँ पे क्राउड आया हुआ है, यहाँ पे इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं, और चतुर्पाजी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा चांस दिया है इन लोगों को और मुझे भी इसमें शामिल होने का शरीक होने का मौका दिया। क्या कर रहे हैं आप, कोई गाना वाना? आप थे 2-3 दिन पहले हैंग टिल डेथ की आप नहीं थे? हैंग टिल डेथ में क्या मैंने आपको देखा, आप ये थे। इनकी स्माइल मेरे को इतनी खूबसूरत लगती है। हैंग टिल डेथ कल हो रही है रिलीज़, ये है जजमेंट हैंग टिल डेथ। उसमें 2 गाने हैं, बहुत बेहतरीन गाने हैं, और एक और फिल्म जिमी शेरगिल पाजी की रिलीज़ हो रही है कल, दिल साला सन की, उसमें भी गाया मैंने, एक पंजाबी नंबर है। तो उसके बाद 14 अक्टूबर का एक फ़िल्म है एक तेरा साथ, काफ़ी सालों से अटकी हुई थी वो, तो फाइनली साथ मिल रहा है हम लोगों को उसका। और इन सारी फिल्मों में आपको मेरा एकदम अलग रंग देखने को मिलेगा। जितने मैंने पपी गाने गाए हैं, 6-8 वाले, पार्टी वाले, जश्न वाले, उनसे एकदम हटके नंबर्स हैं, सूफियाना गाने हैं, रोमांटिक गाने हैं, सैड गाने हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेंगे। ओके अमन, कोई एक म्यूजिक डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहें और कोई एक सिंगर जिसको लगता है, जिससे आपको लगता है कि हाँ यार मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मुकेश है, रफी, एक नाम करके गए हैं और मुकेश जी, ये सब लेजेंड्स हैं हमारे, और मैं अगर उनके थोड़ा भी उनके 1% भी पहुंचने के लिए काबिल हो गया तो मेरी खुशनसीबी होगी। और जितने सारे म्यूज़िक कंपोजर्स हैं हमारे, रहमान साहब हैं सबसे ज़्यादा जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, और जितने तमाम कंपोजर्स हैं जिन लोगों के साथ मैंने काम नहीं किया, अभी हाल ही में जाने मन आया एडिशन का, प्रीतम दा के साथ काम करने का मौका मिला, तो ऐसे करके सारे कंपोजर्स के साथ मैं काम करना चाहूँ, विशाल शेखर, साजिद। शुक्रिया शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब किसी को अगर बैकबोन या किसी को थैंक यू बोलना चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री से जिसने इस मकाम पे पहुंचाया, तो किसे कहना चाहिए? सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मेरे फैमिली मेम्बर्स का और मेरे दोस्तों का, जिनको मेरे पे बिलीव था, मेरी कला में विश्वास था और मुझे कभी हताश नहीं किया। और फिर बाद में जब मैं प्रोफेशनल फ्रंट में सुरक्षेत्र से मेरी एंट्री हुई थी 2012 में, हिमेश जी को मिला मैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे एक पायदान दिया, गाने दिए, 8-9 गाने दिए लगातार। उसके बाद सारी इंडस्ट्री ने जो है एक एक करके मुझे चांस दिया, और हार्डवर्क और आपकी जो पैशन है वो हमेशा होना चाहिए। आपको सारे लोग देख रहे हैं, कोई भी ऐसा म्यूज़िक कंपोजर नहीं है, कोई भी ऐसे इंडस्ट्री का बंदा नहीं है कि वो आपको नहीं देख रहा है। एवरीवन इज़ वॉचिंग यू, तो आपको हमेशा जो काम है अपनी सच्ची लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए। नाम इसका सही कर दीजिए, जेन एशिया क्रिएशन है। जेन एशिया क्रिएशन के द्वारा ओके जेन एशिया क्रिएशन को एक और बार बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ओ छोरी जो इनका गाना है लॉन्च होने वाला है, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। मैं चाहता हूँ, ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत बड़ा हिट हो और सब लोगों के दिल पे राज करे। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कितनी खुशी हो रही है यहाँ आके इवेंट में, आपने क्या देखा वो आपसे जानना चाहेंगे जी। मेरा नाम प्रिया कपूर है, आई एम भोजपुरी एक्ट्रेस, और यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा और ऑर्गेनाइज बहुत अच्छी हुई है और कुछ देखने को बहुत अच्छा लगा। अगर फेस ऑफ द ईयर की बात करें तो क्या देखा आपने, किसको फेस ऑफ द ईयर मिलना चाहिए यहाँ पे, और ट्रांसपेरेंटी की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ट्रांसपेरेंटी आपको दिखा इस पूरे शो फेस ऑफ द ईयर? फेस ऑफ द ईयर में मेरे को बहुत कुछ देखने को मिला। उन सारे लड़कियों में सिर्फ 2 नंबर की लड़कियाँ अच्छी थी, बाई फिगर बाई फेस, और उसका वॉक करने का स्टाइल, वो सेज नाइस गर्ल, तो मेरे ख्याल से तो उसी को होना चाहिए। प्रिया कपूर की बात करें तो बहुत दिन हो गया है, बरसे हो गया भोजपुरी दर्शकों ने प्रिया कपूर को देखा नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं है, एक अरसा बीत गया और कहते हैं यूं ही खामोश क्या हुए, लोगों ने कैसे कैसे फंसाने वाला दिया। क्या कहना चाहेंगे प्रिया, क्यों इतना देर? बस कुछ अच्छे काम नहीं होते हमारे इंडस्ट्रीज़ में, अच्छी सब्जेक्ट नहीं होते,
जो लोग हमारे फैमिली के साथ में बैठ के नहीं देख सकते। तो आई थिंक सो प्रिया कपूर आज दिखाई जल्दी नहीं देती। इसका रीज़न है कि अच्छी सब्जेक्ट नहीं होती, इसके लिए मैं काम नहीं करती। बस इंतज़ार करती हूँ कि जो अच्छा सब्जेक्ट आए उस पर मैं काम करूँ और मेहनत करूँ। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे इस समय अच्छे फैमिली वाले राम लखन एन बहुत सारी फिल्में भोजपुरी की आई तो अच्छे सब्जेक्ट लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत छोटा था, आज बहुत बड़ा हो गया और 2 बड़ी फिल्में आज 9 तारीख को रिलीज़ हो रही हैं एक साथ, खेसारी और दिनेश दोनों एक साथ आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे दिन आ गए कि भोजपुरी इंडस्ट्री को थिएटर नहीं मिल रहा, एक साथ 2 बड़ी फिल्में रिलीज़ करनी पड़ रही है, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुशी हो रही हूँ कि दिनेश जी की मूवी आ रही है और बहुत अच्छी खेसारी जी की मूवी आ रही है और ये दोनों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं गई थी मुहूर्त में, मैं देखी भी हूँ और आई होप सो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएंगे और ये हिट जाएगी मूवी। प्रिया, आने वाले बात करें पाइपलाइन में आपके प्रोजेक्ट की बात करें तो कब देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे? मेरी मूवी एक छठ पूजा में रिलीज़ हो रही है, गांव की लाल। उसमें मेरी स्टोरी बहुत अच्छी है। एक मिडिल फैमिली की लड़की हूँ मैं और बहुत संघर्ष करने के बाद मैं IPS बनी हूँ। तो वो मैं सारे अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि वो जाएं और पूरी फैमिली के साथ में फिल्म देख सकते हैं बैठ के। गाँव की लाल की बात करें तो क्या उसमें कहानी अगर एक लाइन में कहना चाहें? कहानी उसकी ये है कि मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। उस फिल्म में हमारे माँ बाप बहुत गरीब हैं और आजकल के जैसे यूपी बिहार के जो समाज होते हैं और जो एक लड़कियों को जिस नज़र से देखते हैं, तो उस ख्याल से उस नज़र से देखते हुए फिल्म को दर्शाया गया है और आई होप सो कि मैंने काम भी बहुत अच्छा किया है। सो नाइस सब्जेक्ट। प्रिया, कितनी उम्मीद है इस फिल्म से? बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे जब थिएटर पे लगेगी? बस मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जब हमारी ये मूवी गाँव की लाल रिलीज़ हो तो वो प्लीज़ वो जाके देखें और हमें और हमारे काम को लाइक करें। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस बार बड़ा वाला ताज है जो कि मिसेस यूनिवर्स से मिला है और मैंने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया था उसके लिए उन्होंने जो गूगल पे मैंने काफ़ी काम किया उसके लिए मुझे उन्होंने मिसेस यूनिवर्स मोस्ट पॉपुलर वुमेन का अवार्ड दिया। कितना खुशी होता है, देश का नाम आप ऊंचा किया, क्या कहना चाहिए? इंटरनेशनल स्टेज पे जहाँ 70 लेडीज़ थी, वहाँ जब मिसेस इंडिया बुलाया गया तो बहुत गर्व हुआ कि मैं भी उन लोगों के साथ स्टेज पर खड़ी हूँ। नमस्कार, मैं गुरप्रीत कौर चड्ढा आज यहाँ पर फेस ऑफ द ईयर एंड डिज़ाइनर ऑफ द ईयर 2016 में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी मैं चतुर सिंह खालसा जी को, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल इवेंट आज ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। मैं जब 18 इयर्स की थी तो सुष्मिता और ऐश्वर्या जब बने थे मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, तो हमारा भी दिल था कि हम ब्यूटी पेजेंट्स में जाएं, बट उस वक्त पे इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते नहीं थे। तो आज बहुत खुशी होती है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बच्चों को मौका मिलता है जाने का। 32 इयर्स की एज में मैंने ग्लैड्रेक्स मिसेस इंडिया 2008 किया था एंड बड़ा प्राउड फील होता है जब ऑडियंस के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, बिकॉज़ एक्टर को कैमरे के सामने परफॉर्म करना है बट एक मॉडल को पूरी ऑडियंस के सामने अपना परफॉर्मेंस देना है। सो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में एक थ्रिल भी रहता है, मज़ा भी रहता है और बहुत अच्छा भी लगता है आके। थैंक यू सो मच। I'm very happy to be a part of this event. I'm Gurpreet and I would like to congratulate Mr. Chatur. Chatur, what's his name? Chatur? Yeah. So I'm really happy. The event is very nice. बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके यहाँ पे।